So linking to the previous lesson of solubility product, we have learned that even a precipitate can be soluble to a very small extent. And if it is soluble, whether it is to a greater extent or to a smaller extent, we can express its solubility, its dissolving in water by a reversible reaction. For example, for iron 3 sulfide, the reversible reaction of its ionization in water is Fe2S3 to form 2Fe3 plus 3S minus 2. And if we write its equilibrium expression in terms of concentration, जिसको आप Kc कहते हैं A1 के कोर्स में, आपने पढ़ा हुआ है AS में, तो Kc तो होता है product concentrations raised to the power their mole divided by reactant concentrations raised to the power their mole. तो इस केस में जब आप solubility की इक्वेशन लिख रहे होते हैं, तो जो concentration of precipitate होती है, concentration of the solid होती है, वो हम we take it to be constant, because as we said that a precipitate has a very low solubility or dissolving power, and if it has a very low dissolving power, so most of it remains effectively it remains the same. The concentration of the precipitate effectively it remains the same. Only few formula units of this solid will dissolve to form the ions. तो इसलिए हम फिर क्या करते थे कि हम concentration of the solid जो है उसको Kc से multiply करते थे to get a new constant, and that new constant is called solubility product. Now if you see solubility product की जो equation बन रही है in case of iron 3 sulfide, वो बनेगी iron 3 का ions concentration raised to the power 2 because it has a 2 moles in the equation, and sulfide concentration is raised to the power 3 because its moles are 3. So Fe3 plus S minus 2, तो ये आपकी जो है इसकी KSP एक्सप्रेशन बन जाएगा. ठीक है जी. तो KSP एक्सप्रेशन जो है इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं? We have learned this definition in the previous lesson as well, but I am revising it again. It is the product of concentration of the ions of a precipitate raised to the power their moles, raised to the power their moles. So ये आप देख रहे हैं कि KSP जो है वो एक प्रेसिपिटेट के आयंस की कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट है, और रेस टू द पावर देयर मोल्स वो भी आपको देख रहे होंगे. आयरन में आप रेस टू द पावर 2 देख रहे हैं और सल्फर में आप रेस टू द पावर 3 देख रहे हैं. तो अब इसका जो यूनिट होता है, जस्ट लाइक द यूनिट ऑफ Kc कैन चेंज, वैसे ही यूनिट ऑफ KSP कैन चेंज. तो अगर आप इसमें वैल्यूज पुट इन करोगे तो आपके पास एक तो आ रहा है जी मोल पर डीएम क्यूब का, मोल पर डीएम क्यूब का, मोल पर डीएम क्यूब का स्क्वायर, इट इज अ स्क्वायर ऑफ मोल पर डीएम क्यूब, इसका स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय फिर आपके पास आ रहा है जी मोल पर डीएम क्यूब का क्यूब, मोल पर डीएम क्यूब का क्यूब. It's the square of mole per dm cube and then mole per dm cube cubic. तो अगर आप इसकी ब्रैकेट खोलेंगे तो आपके पास जो है एक आ जाएगा मोल स्क्वायर dm माइनस 9, दूसरा आ जाएगा मोल क्यूब dm माइनस 6 और एक मोल क्यूब dm माइनस 3. तो मोल्स को अगर आप इकट्ठा करेंगे तो स्क्वायर और 3 हो जाएगा मोल 5, मोल की पावर 5, मोल पावर 5. ठीक है जी. और dm के साथ फिर क्या आएगा जी dm माइनस 3 to the 6 और 3 to the 9, so 6 plus 9 is minus 15. Mole 5 dm minus 15 is the unit for this KSP expression. तो हर KSP expression का unit different होता है. We need to calculate that unit, and for this KSP its unit is mole raised to the power 5 dm minus 15. तो अब आप उसकी KSP वैल्यू जो है वो फाइंड करना सीखेंगे आज. टुडे वी विल प्रैक्टिस how to find KSP from the solubility or how to find solubility from KSP. These are the two calculations that we will learn in this lesson. But before that,
Let me show you some solubilities in the table. These are this table shows the solubilities of different ionic solids or salts. And remember, greater the solubility product, greater is the precipitate soluble. So silver chloride has a value of 1.8 into 10 to the power minus 10 unit is according to this is मोल स्क्वायर DM-6 होगा, क्योंकि दोनों आयंस की मोल्स 1 1 होते हैं. तो ये -10 है. Aluminum hydroxide is 10 is -32. Barium carbonate, we know all carbonates are insoluble, so 10 is -10. Barium sulfate भी insoluble है, it is 10 is -10. But if you see जितनी small value होगी 10 is the power -32 is a very small value. लेकिन अगर आप Fe2S3 की वैल्यू देखें तो 1 into 10 is the power -88. ठीक है जी. अब तो ये तो मतलब 0.0 के बाद आप जो है वो 87 zeros लगा के फिर 1 लगाएंगे. So it is negligible. Even mercury iodide जो है mercury 2 iodide, its value is very small, 10 is the power -26. तो जितनी वैल्यू बड़ी होगी इसका मतलब है कि वो प्रेसिपिटेट रिलेटिवली ज़्यादा सॉल्युबल होगा, और जितनी वैल्यू ऑफ KSP छोटी होती जाएगी उतना उसकी सॉल्युबिलिटी रिलेटिवली कम होती जाएगी. सो ये हमने ये कह लेते हैं कि solubility of a precipitate is directly proportional to its KSP. Greater the value of KSP, greater is its solubility, and lesser the precipitate will form. And if the value of KSP becomes smaller, it means its solubility is lesser and it is more insoluble and very less negligible it is soluble. तो इसलिए ये जो है वो solubility is directly proportional to its KSP. KSP वैल्यू डायरेक्टली बताती है, जैसे K वैल्यू ऑफ एसिड बताती है कि वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से, वैसे ही KSP भी आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. ग्रेटर द KSP, greater its solubility, lesser the KSP, lesser its solubility. So now calculation of KSP from the solubility. अगर आपको क्वेश्चन में solubility बताई जाए, if you are given the value of the solubility, so you can calculate the value of KSP. This question is very simple and usually carries 2 marks, one for calculation and one for its unit. For example, magnesium fluoride has a solubility. Solubility का मतलब क्या होता है कि कितने मोल्स जो हैं पर DM क्यूब में डिसॉल्व होते हैं. ये उसने आपको क्वेश्चन बता देना है कि मैग्नीशियम फ्लोराइड की सॉल्युबिलिटी 1.22 into 10 to the minus 3 मोल पर DM क्यूब है. इसका मतलब क्या हुआ कि इसके 1.22 into 10 to the minus 3 मोल्स डिसॉल्व होते हैं इन 1 DM क्यूब ऑफ सॉल्यूशन में. अब आपको solubility प्रोडक्ट निकालना है, तो to find the solubility product, first you need to do is to write its equation. तो MgF2 आयनाइजेशन इक्वेशन क्या बनती है या उसकी इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या बनती है, Mg2 plus 2 क्लोराइड आयंस. अब इसका KSP एक्सप्रेशन अगर आप लिखेंगे तो आपको नजर आएगा कि Mg की कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 मल्टीप्लाई फ्लोराइड की कॉन्सेंट्रेशन का पावर 2 हो जाएगी, तो KSP का एक्सप्रेशन होगा. But before putting values into KSP, let's find the concentration of magnesium ions and fluoride ions at equilibrium. तो उसके लिए हमें कहा कि जी 1.22 into 10 to the minus 3 मोल पर DM क्यूब डिसॉल्व होता है, तो फिर 1:1 के हिसाब से मैग्नीशियम का भी उतना ही बनेगा, बिकॉज द रेशियो इज 1:1. ठीक है, ये रेशियो जो है आपके सामने, ये 1:2 है, 1:1:2. So if 1 mole of magnesium fluoride dissolved, it forms 1 mole of magnesium ions and 2 moles of fluoride ions from the equation. तो फिर 1.22 into 10 to the minus 3 से मैग्नीशियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन भी वही रहेगी, बट फ्लोराइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 1.22 की जगह वो 2.44 हो गई टू 10 to the minus 3. अब हमारे पास कॉन्सेंट्रेशंस आ गई हैं. ठीक है जी. अब कॉन्सेंट्रेशंस आने के बाद इन वैल्यूज को हम जो है पुट इन कर देंगे इन द डेटा. तो डेटा के अंदर into the KSP. KSP is this magnesium concentration into fluoride ion concentration square. देखें तो ये 2 से मल्टीप्लाई हुई, अब वो उसके स्क्वायर में भी जाएगी. तो जिसके मोल्स 2 या 3 होते हैं वो पहले स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो में 2 या 3 से उसके कॉन्सेंट्रेशन निकलती है, और फिर वो कॉन्सेंट्रेशन उसके स्क्वायर या क्यूब में आगे फर्दर भी
प्रोसेस होती है। तो ये मत सोचिएगा कि पहले हमने 2 से किया, अब हम उसका पहले ही हमने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, हम स्क्वायर को ले रहे हैं। 2 से इसलिए मल्टीप्लाई किया ताकि स्टोइचियोमेट्रिक कॉन्सेंट्रेशन निकल आए। फिर जब कॉन्सेंट्रेशन निकल आई तो के एस पी में तो हमने वैल्यू लगानी है, और के एस पी एक्सप्रेशन में स्क्वायर या क्यूब है वो तो अवेलेबल है। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे जी वैल्यूज ऑफ मैग्नीशियम की और फ्लोराइड की, और मैग्नीशियम की पावर 1 है, फ्लोराइड की पावर 2 है। कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ रहा है 7.26 × 10⁻⁹। अब इसका यूनिट जो है, क्योंकि इट्स मोल पर डीएम क्यू पावर 1 एंड मोल पर डीएम क्यू पावर स्क्वायर, इट टोटल मेक्स इट अ मोल पर डीएम क्यू की पावर 3, इसलिए मोल क्यूब dm-9 इज इट्स यूनिट। ये यूनिट कैलकुलेट करने का एक नंबर आपको और मिलता है। इफ यू सी द क्वेश्चन नंबर 8, calculating the solubility of solid from the solubility, calculate the solubility of copper 2 sulfide, copper 2 sulfide। तो कॉपर 2 सल्फाइड की सॉल्युबिलिटी जो है वो आप निकाल रहे हैं। इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे हम। कॉपर 2 सल्फाइड आयनाइजेस टू फॉर्म कॉपर 2 प्लस S-2। इट्स KSP वैल्यू जो है वो दे दी गई है। अब आपने सॉल्युबिलिटी निकालनी है फ्रॉम द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो इसके लिए हम एक सपोजिशन कर लेते होते हैं, क्योंकि हमारे पास सॉल्युबिलिटी नहीं होती, तो हम एक चीज़ सपोज कर लेते हैं कि जो आपका ये कॉपर 2 सल्फाइड है, इसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो x मोल्स पर डीएम क्यूब है। x मोल्स पर डीएम क्यूब जो है वो आप सपोज कर लेते हैं, कि जी इसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो x मोल्स पर डीएम क्यूब है। अगर आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दिया हो और आपने सॉल्युबिलिटी निकालनी हो, अब ये रिवर्स कैलकुलेशन है, तो आप x मोल्स पर डीएम क्यूब उसकी सॉल्युबिलिटी सपोज कर लेंगे, और फिर आप देखें इक्वेशन के हिसाब से इसके अंदर जो मोल रेशो है वो इस क्वेश्चन में 1:1:1 है। तो फिर अगर इसके x मोल डिजॉल्व होंगे तो फिर इसके भी x मोल पर डीएमक्यू बनेंगे और इसके भी x मोल पर डीएमक्यू भी बनेंगे। तो आपकी अब इसको जब आप इक्वेशन में जाके डालेंगे तो ये KSP के अंदर कॉपर आयन की कॉन्सेंट्रेशन और सल्फाइड आयन, ये KSP हो गया। ठीक है जी। तो बेशक आप अब यहाँ KSP की एक्सप्रेशन को लिखेंगे, KSP इज इक्वल टू x इंटू एक्स होगा, तो ये x स्क्वायर हो गया, x की पावर स्क्वायर आ गई। ठीक है जी। अब आप क्या करोगे, KSP की वैल्यू इसमें पुट इन करोगे, एंड टू गेट रिड ऑफ द स्क्वायर आप क्या करेंगे, आप इनका अंडर रूट लेंगे, KSP का भी अंडर रूट लेंगे, और जो x की स्क्वायर करने से आंसर आएगा उसका भी अंडर रूट लेंगे, टेकिंग अंडर रूट या स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी। तो सॉल्युबिलिटी की वैल्यू आपके पास निकल आएगी, वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर 2 आयन निकल आएगी, वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयन निकल आएगी। क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन जो रेशो है 1:1:1 है, इसलिए जो भी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर 2 आयन निकलेगी या सल्फाइड आयन निकलेगी वही आपकी सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी भी होगी। ठीक है जी। तो कॉन्सेंट्रेशन इस तरह से निकाली जाती है। ठीक है जी। इसमें एक्स सपोज करने से आपका क्वेश्चन ज़्यादा आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो इफ़ यू सी यू पुट इन द वैल्यू ऑफ KSP विच इज़ 16.3 × 10⁻36। अगर आप इसका अंडर रूट अब लेंगे तो, और इधर से x का अंडर रूट, इसको हमने x सपोज कर लिया हुआ था, और इसका अंडर रूट लेंगे तो अंडर रूट ऑफ 6.3 × 10⁻36 निकाल के तो आपके पास आंसर आ जाएगा। और सॉल्युबिलिटी जब आप निकालते हैं तो फिर उसका यूनिट जो होता है वो सिर्फ मोल पर डीएमक्यू होता है, उसमें और कोई ऑप्शन नहीं होती। मोल पर डीएमक्यू, इट्स यूनिट इज ऑलवेज मोल पर डीएमक्यू। तो आपके पास आंसर जो है वो निकल आएगा यूजिंग योर कैलकुलेटर। Let's see what is the answer. It is 2.5 into 10 to the power minus 18 mole per dm cube, and this is the solubility of copper 2 or वही copper 2 sulfide की है. Now we go to question number 13 ABC and try to find a part. I am giving you 5 minutes to do it.
Calculate the solubility product of the following solutions. Please try to do it in 5 minutes. A part 1 and part 2. Okay, I hope you have tried your question. A part 1. The cadmium sulfide, this is CDS. If I write its ionic equation of dissociation in water, it forms CDS, forms 1 mole of CD positive 2, cadmium plus 2 ions, plus 1 mole of sulfide ions. The question says that solubility is 1.46 into 10 to the minus 11 mole per dm cube. So according to the stoichiometry, 1:1:1. Therefore, the concentration of cadmium ion is also 1.46 into 10 to the minus 11, and sulfide ion is also 1.46 into 10 to the minus 11. So if we put in, and the KSP expression is cadmium ion concentration power 1 and sulfide ion concentration power 1. So now we put in the values, we get 1.46 into 10 to the minus 11 का square. तो अब आपके पास जो है वो आंसर निकल आएगा, and its unit will be mole square dm minus 6. In part 2, what we need to do is we have calcium fluoride. So first thing is that we need to write its ionization. So CaF2 ionizes to form Ca plus 2, Ca plus 2 plus 2 fluoride ions, plus 2 fluoride ions, 2 moles of fluoride ions. 2 moles of fluoride ions. So if now this shows that this is a ratio of 1:2. अगर आपकी solubility जो है वो 0.168 ग्राम पर dm क्यूब है, पहली चीज तो ये है कि आप इसको डिवाइड करें by the mr of calcium fluoride, ताकि आपके पास इसकी concentration जो है वो मोल पर dm क्यूब में आ जाए. तो 0.168 divided by the mr of calcium fluoride is 40.2 plus 19 into 2. Its mr is 78.2. So you divide this by 78.2 is its mr. तो आपके पास इसकी मोल पर डीएम की कॉन्सेंट्रेशन निकलेगी 0.0168 divided by mr. Its concentration is 2.15 into 10 to the power minus 4. So 2.15, it is 2.15 into 10 to the power minus 4 mole per dm cube is its solubility in mole per dm cube. In mole per dm cube. Now, according to the equation, if it is 1 mole dissolved, it will form 1 mole of calcium ion and 2 moles of fluoride ions. So first thing is calcium ion concentration कितनी होगी आपके पास? Calcium ion concentration वही होगी जो आपकी solubility थी, that is 2.15 into 10 to the power minus 4. लेकिन जो आपकी फ्लोराइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन है, फ्लोराइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन है, it is equal to 2 into 2.15 into 10 to the power minus 4. अब ये वैल्यू जब आप अपने इक्वेशन में लगाओगे फॉर KSP, तो KSP जो है इसका उसमें कैल्शियम के साथ पावर 1 है और फ्लोराइड की पावर 2 है, so it will be 2.15 into 10 to the power minus 4 multiplied by 2.15 into 10 to the power 2 into 2 into 2.15 into 10 to the power minus 4 स्क्वायर भी आ जाएगा. अब आप इसका आंसर निकालिए. लेट्स सी कि इसका आंसर में
क्या निकलता है, एंड देन यू नीड टू राइट इट्स यूनिट्स, एंड इट्स यूनिट्स विल बी मोल पर डीएम क्यूब इंटू मोल पर डीएम क्यूब का स्क्वायर करोगे तो ये मोल क्यूब हो जाएगा, मोल क्यूब डीएम माइनस 9. Please calculate it and see what is the answer. Whereas in B part, now you can calculate the solubility in mole per dm cube, whereas KSP is given. तो हम क्या करोगे, पहले वही जैसे इसमें हम करते थे कि आप इसके लिए इक्वेशन जो है वो लिखोगे. प्लीज राइट द इक्वेशन. जिंक sulfide to form zinc plus 2 plus sulfide minus 2. So if you have written the equation, it is zinc plus 2, zinc plus 2 plus S minus 2. ठीक है जी, तो ये आपकी इसकी जो है वो आयनिक इक्वेशन आ गई है. अब हमने सपोज ये कर लिया कि अगर X इज सॉल्युबिलिटी तो फिर इसके भी X मोल्स ही बनेंगे मोल पर डीएम क्यूब, और सल्फर के भी X मोल्स ही बनेंगे क्योंकि ये 1:1:1 में है. दे आर इन अ रेशियो 1:1:1. देयरफॉर अगर हम सपोज कर लें कि इसकी सॉल्युबिलिटी X थी, जिंक सल्फाइड थी, तो फिर जिंक आयंस भी X मोल पर डीएम क्यूब, सल्फाइड आयन इज X मोल पर डीएम क्यूब. अब आप इसके अगर KSP में जाओगे, KSP की वैल्यू आपको दी हुई है, तो KSP में ये आ जाएगा जी 1.6 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻⁻23, तो 10⁻⁻23. ठीक है जी, इसका आपको जो है इस सारे का आपको स्क्वायर लेना पड़ेगा. यू नीड टू टेक इट्स स्क्वायर, तो आपके पास इसका आंसर जो है वो निकल आएगा. ये तो सिंपल क्वेश्चन था. लेकिन इन सी पार्ट सिल्वर कार्बोनेट KSP दिया हुआ है और हिंट दिया हुआ है कि आपको यू हैव टू डिवाइड बाय 4 देन टेक द क्यूब रूट. कैन यू सी व्हाई? देखिए इसकी अगर आप इक्वेशन लिखोगे, लेट मी रिमूव ऑल दिस टू क्लैरिफाई द बोर्ड. तो मैं ऊपर यहाँ लिख रहा हूँ सिल्वर कार्बोनेट Ag2CO3, when it will ionize reversibly, it will form 2 silver ions, 2 moles of silver ions plus 2 moles of silver ions plus then carbonate के साथ जो है Ag2CO3 plus CO3 का एक ही मोल आएगा CO3, और उसकी वैलेंसी है जी -2. ये आयनाइजेशन आ गई आपके पास. अब अगर हम कह रहे हैं कि जी उसकी KSP है और हम कह रहे हैं कि जी इसके X मोल्स डिजोल्व हुए थे, इसके X मोल हुए थे, तो फिर सिल्वर आयन जो है वो 2X बनेगा और कार्बोनेट जो है वो सिर्फ X बनेगा. ठीक है जी, तो अब आपके पास KSP में जब आप जाएंगे तो इसकी वैल्यू जो बनेगी KSP इज इक्वल टू सिल्वर आयन कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर एंड कार्बोनेट आयन कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1. तो अब आप करोगे जी KSP की वैल्यू है 6.3 इंटू 10⁻⁻, 6.3 इंटू 10⁻⁻12. ठीक है जी, ये KSP है आपके पास. अब आप KSP जो है इसके इक्वल हो रहा है जी सॉल्युबिलिटी की इक्वेशन में 2x का स्क्वायर
2x का स्क्वायर, टू एक्स का स्क्वायर इंटू एक्स, 2x का स्क्वायर इंटू एक्स। तो ये अगर ब्रैकेट खोलोगे तो ये बन जाएगा 4x क्यूब। इट इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू 4x की पावर 3 हो जाएगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा टू फाइंड द आंसर? पहले तो आपको इसको भी 4 पे डिवाइड करना पड़ेगा और इसको भी 4 पे डिवाइड करना पड़ेगा, तो आपका 4 जो है वो खत्म हो जाएगा। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इसका क्यूबिक रूट लेना पड़ेगा, क्यूब रूट लेना पड़ेगा। योर कैलकुलेटर प्रोवाइड्स द ऑप्शन टू टेक क्यूब रूट, so you need to take cube root of 6.3 into 10 to the power minus 12 divided by 4। तो क्यूब रूट लेंगे तो आपके पास x की वैल्यू निकल आएगी, और x की वैल्यू जो है वो सिल्वर कार्बोनेट की सॉल्युबिलिटी थी, वो आ जाएगी। अगर कहे सिल्वर आयन कॉन्सेंट्रेशन निकालो तो फिर जो x की वैल्यू है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, और अगर कार्बोनेट की वैल्यू निकालनी, कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है, तो फिर तो वही सॉल्युबिलिटी वाला ही आंसर आएगा, क्योंकि वो x है। लेकिन सिल्वर आयन कॉन्सेंट्रेशन अगर निकालने को कहता है तो आपको x को